Respected Dr. S.K. Sinha, ex-DSW, BBMKU, हमारे बीच में अभी थे डॉक्टर जैन सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड प्रिंसिपल RSP कॉलेज झरिया, डॉक्टर अजय प्रसाद सर, डॉक्टर R.K. तिवारी, डॉक्टर A.K. सिंह, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर अमिताभ वर्मा जी, हमारे केमिस्ट्री हेड एंड कमिंग डीन ऑफ साइंस डॉक्टर लीलावती जी, डॉक्टर D.K. गिरी, नेक्स्ट हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर भगवान पाठक जी, डॉक्टर मानस आचार्य बंगाली डिपार्टमेंट, डॉक्टर शर्मिला बैनर्जी ऑफ बंगाली डिपार्टमेंट, डॉक्टर शांतन जी हेड फिजिक्स डिपार्टमेंट P.K. Rai मेमोरियल कॉलेज धनबाद, and some other teachers who are present in the meeting, Dr. Dharmendra Kumar Singh, Dr. Amulya Suran S. Beg, Dr. Kaushik Dasgupta, Head Bengali Department, Dr. Atul Kumar Sinha, Geology Department, Dr. R.R. Paul, Department University Department of Political Science, Dr. H.S. Chaudhary, Head Foreign University Department of Foreign Languages, and he is also a teacher of English Department, and other teachers and some non-teaching staff members who Dr. Shiva Prasad ji, HOD University Department of Computer Science, and he is a teacher of University Department of Mathematics also, and present FO of this university, and other teachers who were present, and some non-teaching staff members who came here in the early morning, the staffs of my department, the scholar, my dear students of PG semester 1, PG semester 3, some students who already passed from this university, particularly from 2021-23 session, and some students of previous sessions also, and the research scholars of this physics department, and one beloved student from P.K. Rai Memorial College, who is now a PG student of IIT Guwahati, I think, IIT Patna. From account section, Mr. S.K. Sinha and Deepak Misra ji, who came here, and obviously Ketki, research scholar, scholar of BBMKU, scholar of Mass Communication Department, and all others who are present here. I cannot believe, still I am not feeling that I am retiring. Yesterday also in this room there was a program on Dikshit Bharat at the rate 2047. We were here, we conducted a discussion, a good number of students, they submitted several proposals, and obviously that will be pursued by Dr. D.K. Giri, and obviously Dr. Rajendra Pratap and others of this department. Today I first remember my parents, for whom I am here.
My father is no more. He left for Heavenly Abode in 2010. My mother is alive. So for I remember them because what I was, what I am, and what I will be, it is because of my parents. My grandfather and grandmother. Discipline I learned from my grandfather. He was a very popular person where we used to stay. He was a freedom fighter also, but he never applied for freedom fighter pension. He left his job in 1942 as assistant headmaster by the call of Gandhiji, Quit India movement. Although he was a strong follower of Subhash Chandra Bose. I learned discipline, punctuality from my headmistress of primary school in Durgapur. I did my schooling from Durgapur. It was under West Bengal Board of Secondary Education. The headmistress, she is also no more, late Indu Bandopadhyay. She was so strict that all the students used to come by 10 and could not leave without her permission. She taught us discipline, honesty, sincerity, and punctuality. We used to sit together, irrespective of caste, creed, and language. I learnt a lot from my high school teachers. My teacher, late Ranjit Adhikari, he was a teacher of English and Bengali. He taught us how to learn literature. And I was always interested in grammar. And they taught us how to carry out your classwork and homework. I am grateful to my that headmaster who was from physics, late Sukumar Bhojostidar, and another physics teacher, late U. Karmakar. Then I joined to Ramakrishna Mission Vidya Mandir, Belur Math. You know, it is a A++ graded college. Now it is graded. At that time also it was among the top 3 colleges of University of Calcutta. Presidency, Belur Ramakrishna Mission and Narendrapur Ramakrishna Mission. We used to fight neck to neck to perform for our performance in the university exams. There I got an outstanding teacher. He is also no more, Dr. H.K. Pal. Dr. H.K. Pal was a contemporary of Dr. K.S. Krishnan. K.S. Krishnan, you know, he was PhD student of C.V. Raman. And Dr. H.K. Pal did his PhD from Berkeley, from Edinburgh, under Professor Berkeley, the Nobel laureate. And he was a teacher. He taught us how to do the practical and how to study physics. One day, after the first day, after attending his class, all the students from our batch requested him to discuss physics in mother language. He simply told that I don't teach first year in mother language, but if you are interested, I will tell you. Next day, the whole class he taught in Bengali without using a single word of English, and we surrendered. We told, sir, please teach in English because it is very hard to understand your lecture
in Bengali. Another teacher was there, Professor P.C. Sen. We calculated he passed MSc in 1914, that is before the discovery of neutron. And he taught us at the age of when I entered the first year in 1975. At that time, he climbed up to third floor, and at the age of 83 years, he started teaching. And when he attained 86, we left college, and I heard that till 89 he continued to teach. And you cannot imagine his patience. He told us कि देखो क्लास में मेरा तो एज हो गया है, तो क्लास में हम लेक्चर करने के बाद मेरे चेम्बर में आके हमसे पूछना। He was a visiting professor, और वो दो नोट्स तैयार करते थे। एक नोट स्टूडेंट को दे देते थे और एक नोट पढ़ते थे। तो we were really surprised कि वो आदमी न्यूट्रॉन डिस्कवरी से पहले एमएससी, ऑब्वियसली ही वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट एंड प्रेमचंद रायचंद स्कॉलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कि इतना पेशेंस है कि एट दिस एज पढ़ा रहे हैं, अब दो नोट है। एंड आई गॉट वन टीचर who inspired me to take particle physics as special paper, and who was recently, he is not, but he was the first vice chancellor of Ramakrishna Vivekananda University, Prabhakar Maharaj, Swami Atmapriyananda. He is a very popular monk. He did PhD under P.M. Matthews from Chennai University. He told me when I was in dilemma whether should I join Science College at University of Calcutta for PG course or should I continue at Vishwabharati, because you know that there is at that time there is a rule that if you leave one university you have to give entrance examination. After qualifying the entrance examination only you can get the admission. So I got that position, I got the chance to take admission at Vishwabharati, and the choice was because I always looked for residential institutions, because my father was doing service in railway, so it was a transferable job. तो जहाँ भी हॉस्टल है ऐसे अकोमोडेशन हम खोजते थे। तो आई वॉज इन डिलेमा, क्या करेंगे? एक तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अट्रैक्शन है, और दूसरा है कि विश्वभारती में भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एकदम टाइमली सारा चीज हो रहा है। तो आई वेंट टू प्रभाकर महाराज, आई आस्क्ड क्या हुआ कि पहले हम गए तो वहां पर सबसे बातचीत हुआ, प्रभाकर महाराज नहीं मिले। तो थोड़ा देर बाद जो है हम थोड़ा सा मायूस हो गए कि उनसे एडवाइस देना है, बिना लेके हम सामने वहाँ प्रेयर हो रहा था, प्रेयर में अटेंड देने के बाद हम निकल रहे थे गेट से, अचानक देखे प्रभाकर महाराज आ रहे थे। तो हम बोले व्हाई आर यू गोइंग? तो obviously he is a South Indian and he cannot speak in Bengali. So I told him, sir, Maharaj, I was looking for you. Actually, I want one suggestion from you. What suggestion? Then I told my problem. He told, why people you are chasing behind the University of Calcutta only? Why not for other universities? There is a particle physics special paper. You go there and don't leave. You go there, you will definitely get fellowship and you will join there. There are so many good professors are there, and you continue your study there. So I was determined to, okay, I will not join Calcutta University, I will stay at Vishwabharati. There I got my guru. He is now 87 years old. Still when I am calling him, he asked me after just exchanging the good wishes, have you seen that paper? What are you doing now? I usually do, sir, हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अरे इस प्रॉब्लम में पेपर पब्लिश हुआ, have you seen that? तो बोले हाँ सर, इसको हम देखें। नहीं तुम ठीक से अच्छा देखो, बोलो तो तुम्हारा काम के साथ वो काम का क्या डिफरेंस है? I was thinking that at the age of 87, can I talk in this way? क्या हम बोल सकते हैं?
यही हमको सोच आ जाता है कि हम कैसे बताएंगे. And my teacher, my guru, was a student of outstanding physicists of the country, Professor S.N. Bose, Professor Meghnad Saha, Professor Bikram Sarabhai, Homi Jahangir Bhabha, when he was at EIFR, and he was also student of Yashpal and Engineer Menon. And he had paper with Yashpal when he was in India, and after that he did his PhD from abroad, USA. There also he did PhD from Carnegie Mellon University under the supervision of Nobel laureate. I also get blessings of several outstanding academicians like Pali Professor of University of Calcutta, Professor Amitabh Rai Chaudhuri, who is Bhatnagar awardee also, Professor Utpal Sarkar, Professor Padmasri Rohini Godbole. He taught us about the particle physics. Late Professor Tulsi Das of Kanpur IIT, late Professor S.D. Joglekar of Kanpur IIT, who taught us gas theory in particle physics. Professor N. Mukunda, the first Jawaharlal Nehru Fellow of our country, and Professor E.C.G. Sudarshan also. So many teachers I met, I came across during my MSc, PhD and postdoctoral life. So I got blessings of so many good persons, but still I think I have learned a very small physics. Still I have to learn much more, and what I am today, it is because of all these numberless scientists. One day in one international seminar, I was sharing a car with Professor Yogesh Chandra Pati. He was very famous for Patisala model. So I was talking with him. He was obviously non-Indian, non-resident Indian, NRI. He worked with R.N. Mahapatra and Abdul Salam also. So I asked him, he was just telling, hey, are you a faculty at this place, at this university, Vishwabharati? I said, no sir, I am in the last stage of my second postdoc as a CSR associate. I will be shifting to Calcutta University now. So sir, all these things are happening. I have applied to your university also. But no, you don't leave your country. You will definitely get something. And after 95, you know that I joined here in 1996 as a lecturer. At that time it was called lecturer, now it is assistant professor at RSP College, Jharia. I got some options because some of my friends were either vice chancellors or directors or some holding some positions who can influence everything. Somebody told us, Acha, why are you not applying for becoming a fellow of at least National Science Academy? Then I replied, why should I get any advantage from you? आज अगर हम एडवांटेज लेंगे तो अगला दिन भाई तुम तो हमसे एडवांटेज लोगे ना. तो मेरा फ्रेंड है इसलिए हम ऐसा बात करते थे. और एडवांटेज हम नहीं लेंगे. If you think कि I deserve it, you recommend my name. Why are you telling कि हम यूनिवर्सिटी में बोलेंगे मेरा नाम रिकमेंड करने के लिए? I will never ask anybody anything from me. क्यों हम बोलेंगे? अगर तुमको लगता है तो तुम बोलो मेरे बारे में, लेकिन हम नहीं बोलेंगे. बोलो तुमको बोलना बेकार है. तुम लोगों हम बोले I am very much happy. क्यों? आज हम फील कर रहे हैं. Yes, I got more than that because of you. My lifeline is my student. My lifeline is teaching. My lifeline is doing research. मेरा एक
हम सोचे थे कि अच्छा हम क्या किए हैं, हम लोग तो लेते हैं बहुत, कुछ किए हैं। अभी डॉक्टर प्रवीण सिंह बताए, आरएसपी कॉलेज झरिया फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज दिनों यूनिवर्सिटी में जो नैक एक्रीडेटेड हुआ था। We were 4 members who tirelessly we did our job. Dr. Praveen Singh, Dr. R.K.S. Chaudhary, Dr. A. Thakur, and myself was there. And myself and Dr. Praveen Singh were assigned to prepare all the questionnaires, part B portion and part A portion were completed by R.K.S. Chaudhary and Dr. A. Thakur. In the second cycle, I was there in RSC College Jharia, and my teacher, उस जायगा के प्रति तुम्हारा प्यार होना चाहिए। कभी नहीं सोचो कि वो जायगा छोटा है, उसको जितना ऊपर में ले जाना है उसको उतना ही ऊपर में ले जाने के लिए तुमको जो करना है करोगे, लेकिन एवरीथिंग यू शुड डू ऑनेस्टली। ऑनेस्टली छोड़ के कुछ मत करना। उसके बाद जो भी है, मेरा एक ड्रीम था कि पार्टिकल फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करना झारखंड में कम से कम। यस, आई ट्राइड विद द हेल्प ऑफ माय कोलीग्स डॉक्टर सायंकन सिंह, डॉक्टर डीके गिरी एंड डॉक्टर डीके सिंह, धनंजय कुमार सिंह। We introduced particle physics as a special paper in 2020-22 syllabus, and the first batch in 22 of 6 students obtained particle physics special paper, and their performance were outstanding. So I produced 6 particle physicists at the postgraduate level. I guided successfully 2 PhD students in particle physics area. High energy physics phenomenology, actually technical term. The first student did PhD from Innova University in 2007, and another student from Tilkamaji Bhagalpur University 2014. And I am also interested in other than particle physics, because some people say बिना माइक पर लास्ट तक चला जाता है। Because some people say कि I am very much क्या बोलेंगे, mad about particle physics. My friend Praveen Singh tells that I am mad about Albert Einstein. जब भी हम उसको गुड मॉर्निंग भेजते थे, साथ में कुछ ना कुछ या तो एस.एन. बोस या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का रहता था। और क्लास में भी हमको लगता है कि स्टूडेंट्स लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में, इवन थर्ड सेमेस्टर मैंने क्वांटम मैकेनिक्स, और थर्ड सेमेस्टर में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, और फोर्थ सेमेस्टर में स्पेशल पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट जो कम्युनिकेशन सिस्टम और पार्टिकल फिजिक्स ये पढ़ाते हैं। तो इसीलिए they are habituated hearing the names of R.P. Feynman, Albert Einstein, S.N. Bose, Dirac and Fermi. And in the last Teachers' Day celebration, one student told that we are getting tired hearing wave function, Dirac equation, Schrodinger equation from Mukhopadhyay. But one thing I always tell my students, and even also I think, actually this I got from a feedback from one of my teachers. Actually my teaching started from 1983. You know that there is a rule in UGC or CSIR that if you are a research scholar, at least 4 hours you have to take classes, and not more than 4 hours. But there, that all my teachers, they used to give me assignments. You take this practical class, you take the theory classes, you do the your internal assessment works and all these things. And I had to take the classes till 95,
because when the last time when I was in Calcutta University as associate, there also I was assigned by Professor Rai Chaudhuri to take or to guide the students in computer science practical. So I told that they are very much genius. What should I tell them? हम तो इसके तुलना में हम कुछ नहीं जानते हैं. बोला अरे तुमको कुछ नहीं करना है, तुम वहाँ जाओ ना, तुम वहाँ बोलो जाके कुछ नहीं होगा. अरे तुम तो लॉजिकली स्टेटमेंट दोगे, तो वहाँ वो थोड़ी फिजिक्स समझता है, वो तुम उसको फिजिक्स घुसा दोगे, तुम लॉजिक के बताना शुरू कर दोगे. ऐसा करोगे कि वो सोचेगा कि तुम बहुत जानते हो. चलो तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस था. तो मेरा एक टीचर थे डॉक्टर केसी गुप्ता, जिसका क्लासिकल मैकेनिक्स है लिखा हुआ. मैंने हम लोग बोलते थे उस टाइम की वो सर तो गोल्डस्टाइन का पूरा ट्रांसलेशन कर दिया. मैंने गोल्डस्टाइन का जितना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके सर किताब लिखी. बट ही वाज अ वेरी गुड टीचर. ही वाज फ्रॉम दिल्ली. वन डे मैंने व्हाइल टेकिंग द क्लास, हम क्लास ले रहे थे, तो एक दिन हमको बुलाया कि कृष्णनाथ सुनो इधर. बोले अच्छा देखो तुम जो पढ़ाते हो स्टूडेंट्स लोग को ठीक क्या समझते हैं? अरे क्यों नहीं, सब तो समझते हैं. At that time I was doing postdoc, so I thought that okay, जो हम बोल रहे हैं सब तो समझ में आ रहा है, कोई तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हम समझ रहा है. तो बोले नहीं तो समझते हैं. बोले सुनो, एवरीडे लाइफ में फिजिक्स को लाओ, समझाओ तो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा. तब नेक्स्ट हम गए, हम बोले कि अरे भाई तुम लोग तो हमको कुछ नहीं बोले हो, तुम लोग को गॉसेस थ्योरम पूछा है, समझाए थे, तुम लोग को पता नहीं चला. तो सर आप जो बोले हैं फ्लक्स बोल दिए हैं, क्या बोल दिए हैं, तो लोग तो है केमिस्ट्री सब्सिडियरी या मैथमेटिक्स ऑनर्स का या तो लाइफ साइंस का, क्योंकि वहाँ एक ऑप्शन था लाइफ साइंस का जो है वो उसका सब्सिडियरी जो पेपर है तो फिजिक्स कोई लेता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेता था कि उसको सुविधा था, क्योंकि वहाँ पर बायोफिजिक्स में जो लोग काम करते थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में या जूलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उसमें सुविधा होता था. तो हमको पता चला कि इसको कैसे समझाएंगे. इसीलिए जब तुम लोग को हम पढ़ाते हैं, तुम लोग को हम बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ एक्सप्लेनेशन देके समझना चाहिए. हम कोशिश करते हैं. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द हर्ड थ्योरी इन वेरी सॉफ्ट वे. आई ट्राइड. I do not know to what extent I was successful. लेकिन हमको सबसे अच्छा लग रहा है कि मेरा जितना जिंदगी में जो भी मेरा फेलोशिप या अवार्ड मिला था, जो भी मिला है, उससे ज्यादा आज हमको मिला है तुम लोग से. हम सोचे भी नहीं. And I am really telling you that today also my dear colleague Dr. D.K. Giri did not tell a single word about this program. भाई क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? बोले कि सर ये आपको क्या सोचना है, आप छोड़िए ना, आप समझ बैठिए ना, ये हम लोग का काम है, छोड़िए ना. परसों के बोला हमको हिंट दिए थे कि सुनिए ना सर, ये जो है ये लोग बोले हैं ये लोग रहेंगे. हमने हाँ हमको इन्विटेशन दिया, लेकिन क्या है, और वो छोड़िए ना, वो आपका तो बोले हम तो क्लास लेंगे. तो ठीक है, हम प्रोग्राम 1 घंटा पीछे कर देंगे, 12:30 से शुरू करेंगे. अब 1 घंटा क्लास लीजिए, हम लोग तब तक तैयारी करेंगे. आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई कोलीग डॉक्टर D.K. गिरी एंड पंकज. सर मैं तो आपका पूछूं, आप जहाँ जाइएगा आपके साथ हम जाएंगे. तो नहीं तुम पूछ क्या रहोगे, तुम मेरा हार्ट पे बैठे रहो. और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. और मेरे यहाँ जो एक स्टाफ है जंग बहादुर जी, तो हम तो इनको हमेशा जंग बहादुर महातो बोलते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो RSP कॉलेज में हम जब ज्वाइन किए थे उसी टाइम जंग बहादुर महातो स्टोर कीपर थे फिजिक्स में, तो इसलिए जंग बहादुर महातो ही याद आता है. बोलते हैं कि सर हम महातो नहीं, हम ज्यादा चाय वाला जो है वो आता है, बोलता है कि सर आपका जो लाल बहादुर है ना. तो ऐसा चलता है. और हम लोग एक चीज है हम देखे हैं कि
जिंदगी में क्या है। आज जो सबसे ऊंचा पोस्ट में है, एक दिन जन्म लिए हैं, एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो क्यों हम दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। हाँ, क्या हम ह्यूमन बीइंग हैं। ये सबसे बड़ा रिपु होता है क्रोध। ये समझना स्वयं विश्वामित्र मुनि या दुर्वासा भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम तो कुछ नहीं है। स्वयं भगवान शिव नहीं कर पाए तो हम तो कुछ नहीं है। लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ एनी रिलीजन। किसी रिलीजन के साथ मेरे हृदय में सबके प्रति समान निष्ठा सम्मान सब कुछ है। हम सबको प्रणाम करते हैं। तो होता है, लेकिन फिर भी हमको खराब लगता है। हमको रात में ना नींद नहीं आता। हम तो सोचते हैं हम उनको ऐसा बोल दिए हैं तो अच्छा काल मिलते हैं तो काल बोलेंगे कि भाई देखिए ना हम थोड़ा गुस्सा में आके बोल दिए, कुछ माइंड मत कीजिएगा। हमको खराब लगता है। लेकिन आई एम नॉट एन आइडियल पर्सन। कभी कभी कोई स्टूडेंट आप बोला सर यू आर माई आइडियल। हम नहीं, हमको आइडियल मत बनाओ। आप आइडियल बनाना है तो एस.एन. बोस को बनाओ, आइंस्टाइन को बनाओ। लेकिन एक चीज है कि जो भारत में है वही ब्रह्मांड में है। धनबाद मेरा जन्म स्थान है, धनबाद मेरा कर्म स्थान भी है। यहाँ भी हम काम किए हैं। धनबाद के प्रति लगाव मेरा ज्यादा है। धनबाद के प्रति कोई आंगली उठा के कुछ बात बोलता है तो हमको चोट पहुंचता है। अपना जगह पर सब सही है, सब अपना अपना जन्म स्थान मातृभूमि सब ठीक है, लेकिन मेरा मातृभूमि भारत है। हम तो सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि जस्ट हम बोलना, मतलब एक चीज बोलना चाहते हैं कि पीएचडी करने के बाद जब हम पोस्ट डॉक में किए थे तो होक्काइडो यूनिवर्सिटी से फूजी का हैंड रिटन लेटर आया था कि आपको हम मित्सुबिशी फाउंडेशन फेलोशिप का फॉर्म भेज रहे हैं, आप 6 महीने के लिए आ सकते हैं, आफ्टर 6 months यू हैव टू लीव। तो उस टाइम हम लेकिन क्या करें, तो उस टाइम पीआरएल से मेरा 2 साल का आया, तो हम सोचे हम बाहर क्यों जाएंगे जब देश में हमको मिल गया है, हम बड़ा बेटा है, हम घर दो छोड़ के चले जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा घर में तो हमको आने में तो दिक्कत होगा। और हम अहमदाबाद में रहेंगे तो उसमें क्या है, ट्रेन जर्नी करके हम, नहीं तो ओवरनाइट जर्नी करके मुंबई से हम प्लेन से हम कलकत्ता आ जाएंगे, कलकत्ता से ब्लैक डायमंड पकड़ के हम जो है ब्लैक डायमंड का कोलफील्ड जो है, I am traveling by this train since 1965. मेरा जन्म साल याद रखना बहुत आसान है। If you look at the Dhanbad station, you can find 1958. तो इसीलिए ना 65 साल हो गया। तो हम इसलिए देखे कि नहीं ये तो हम नहीं जाएंगे। मेरा बेटा भी ऐसा ही हुआ था। उसको जब हम बोले थे जे तुम बाहर जाओगे तो बोला नहीं, हम वो मेडिकल प्रोफेशन में है तो बोलता है नहीं हम कभी बाहर में नहीं रहेंगे, हमको जब इंडिया में रहना है तो हम इंडिया में रहेंगे। यहाँ का जितना सारे डिजीज है उसमें ना हम परिचित होंगे। वहाँ का कोई वही होता है, वहाँ डिसेंट्री है नहीं है, तो किसी का होगा तो कैसे मेडिसिन देंगे, उससे अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। तो देश के प्रति जो है, नेशनल एंथम के प्रति जो है, देश के प्रति जो भावना है ये बहुत बड़ा होता है। देश के बारे में सोचो, हम नहीं जानते हैं देश के बारे में, कुछ नहीं जानते हैं। देश में हमारे यहाँ हम बार बार तुम लोग को बोलते हैं ना, क्वार्क जब पढ़ा रहे थे जो सेमेस्टर 3 का है कि हमारे कनाड बोले थे, एटम का कॉन्सेप्ट दिए थे, सब बोलता है डाल्टन दिए थे। अरे डाल्टन से बहुत पहले वो दिया था, सारा चीज दिया था। यूनिफिकेशन हमारे भारतीय का कण कण में है जो अभी हम लोग खोज रहे हैं। जब हम इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे तो बेलूर में जब हम कॉलेज में चलते थे हमको लगता था कि once upon a time स्वामी विवेकानंद was walking on this road
And on this road I am also walking, but I am where I am and where he was. जब हम वहां पर चलते थे तब हम सोचते थे कि रविंद्रनाथ Tagore was walking through this road and I am also walking through this road. But where I am, कुछ नहीं है. रविंद्रनाथ टैगोर का कंसेप्ट इतना क्लियर था साइंस में भी. कैन यू इमेजिन कि उनका नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, 1926 में, 26 में क्वांटम मैकेनिक्स का फ्रंट में आया श्रोडिंगर इक्वेशन. फिजिक्स डिपार्टमेंट में वहां एक ऑडिटोरियम में लिखा हुआ है, নৃত্যের বশে সুন্দর হলো বিদ্রোহী পরমাণু, পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্চিরে বাজিল চন্দ্রভানু. চন্দ্রভানু, ভানু मतलब सन, चंद्र मतलब मून. सोलर सिस्टम लेके रविंद्रनाथ बोले थे कि माने एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो ट्रांजिशन होता है नृत्येर बशे वाइब्रेशन सुंदर हलो माने इट इज बिकमिंग ब्यूटीफुल, स्पेक्ट्रम इज कमिंग, विद्रोही परमाणु एजिटेटिंग एटम्स, पदयुग घिरे ज्योतिमंचिरे when radiation is coming out, emission of radiation, ज्योतिमंचिरे बाजिलो चंद्रभानु माने you are getting क्या ना एनर्जी, just you are getting energy from sun and moon. तो माने मून मतलब वो एक्चुअली बोलना चाहते थे कि हॉटनेस ऑफ द सन एंड कोल्डनेस ऑफ द मून. माने रात में चंद्रोदय के बाद क्या होता है, बहुत आराम लगता है ना. तो यही है कि एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी जब इमिट होता है, इसके बारे में बोलते हैं. तो सोचो एक आदमी बिना साइंस का आदमी, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर. हम बार बार बोलते हैं कि डिराक का एक कोटेशन कि एवरीथिंग इज इन नेचर. नेचर को जो जानते हैं उसी को वो बड़ा आदमी बनता है, और नेचर को जो डिस्ट्रॉय करते हैं या नेचर से कोई सीखता नहीं है वो कभी कुछ नहीं सीखते हैं. एवरीथिंग इज इन नेचर. तो मेरा कहना इतना ही है. नाउ यू आर आल्सो गेटिंग वेरी गुड टीम. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. एवरीबॉडी इज डिस्पेंसेबल बाय अदर बॉडी. कुछ नहीं है. सब आदमी जो है, सब टीचर जो है, तुम्हारे सब गुरु जो है सब बराबर है. They are all outstanding teachers. You will be getting the ideas from Dr. D.K. Giri, Dr. Rajendra Pratap, Dr. Santan Sil, Dr. D.K. Singh and other teachers of different colleges in Bokaro and other places. I think you will grow up. आज भी हमको अच्छा लगता है. हाँ, और एक चीज है, ये हम एमफिल में हम 5 स्टूडेंट को पीएचडी एमफिल में हम 5 स्टूडेंट्स को क्वालिटेटिव गाइड किए थे. उसमें एक अभी प्रेजेंट है जो अभी डिपार्टमेंट का प्रेजेंट स्कॉलर है डॉक्टर डीके गिरी का अंडर में. हाँ, ये चला गया ना, है क्या? सॉरी सरकार. He was one of them. He is a very good teacher in Dinawali School, Sindri. So ये हमको अच्छा लगता है. जस्ट 1 महीना पहले एक हम रंधीरवाला चौक से क्रॉस कर रहे थे शाम में, तो हम देखे कि एक मैंने कम उम्र का ही एक आदमी हमको बार बार देख रहा है. हमको लग रहा है कि हम भी इसको कहीं देखे हैं. तो थोड़ा देर बाद वो देखे, तो मैंने जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड बाद आके बोले कि आप तो बंदोबस्त सर हैं. हाँ, क्यों? बोला सर हम 20-22 सेशन, सॉरी 2002 सेशन में एमएससी किए थे. उस टाइम आईएसपी कॉलेज में एमएससी था. तो एमएससी किए थे सर. आपका मैं स्टूडेंट थे. तो अभी कहाँ हो? बोला अभी सर मुंबई में है. हम एमएससी करने के बाद हम एमबीए किए, एलएलबी किए, उसके बाद हम कॉर्पोरेट लॉ में काम करते हैं. हमको बहुत अच्छा लगा. तो आज सुबह हमको कुछ स्टूडेंट फोन किया कि सर ढूंढ रहे हैं कि आप रिटायर कर रहे हैं. अरे वो तो करना ही है. तो बोले सर हम लोग आ सकते हैं. हम बोले देखो हमसे मिलने के लिए हम तो कभी किसी को ना नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी ना हम कुछ नहीं जानते हैं क्या प्रोग्राम है नहीं है. तो हमको अच्छा लगा तुम लोग गिरी सर से एक बार बात कर लें. तो 5 मिनट के अंदर देखिए हमारे गिरी साहब जो है सारे ग्रुप में मैसेज भेज दिए कि सबको इनवाइट कर दिए. इतना सारे स्टूडेंट्स आए. रियली आई एम ओवरवेल्म्ड
बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस, योर पेशेंस, हमको इतना अच्छा लगा और हमको कुछ नहीं चाहिए था। ये भी मेरा जिंदगी में इतना सारे टीचर्स आए हैं। हम तो डॉक्टर सिन्हा को हम सोहेलन दा बोलते थे। ठीक है, डॉक्टर सिन्हा जो है, इसके सिन्हा, वो भी रिटायर किए थे ज़्यादा दिन पहले नहीं, सितंबर में ही रिटायर किए थे। तो हमारे रजिस्ट्रार साहब जो है हमको बताएगा, हमको रजिस्टर मत करिए, हमारे वो भी बहुत क्लोज फ्रेंड है डॉक्टर कौशल कुमार। तो हम लोग जो है ना, तो यहाँ इतना सारे आदमी आए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और इतना टाइम बैठ के सारा चीज सुन रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम स्पीचलेस। एंड बार बार हम केवल यही बोलेंगे कि आप लोग का जितना प्यार हमको मिला है, हो सकता है क्या होगा भी, क्योंकि दो बर्तन जब बहुत नजदीक में रहता है तो टकराव होता ही है, कोलिशन का रूल है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि हमसे किसी भी स्टेटमेंट में किसी का भी कोई मेंटली हर्ट पहुंचा, किसी को खराब लगा, तो हम सबको सामने आज हाथ माफी मांगते हैं। और कभी भी गलती नहीं करते हैं ना, भगवान भी गलती करते हैं, तो इंसान तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए कभी ना कभी किसी ना किसी गलती हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग हमको जो प्यार दिए हैं, हमको अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है भाई, हम तो 2 तारीख आएंगे, काल में आएंगे, अब 2 तारीख में हम आएंगे, हम घूमते रहेंगे। खाली है, वहाँ घुस जाएंगे। आप लोग नाम से काहे डरते हैं? यही सच है। बांग्ला में हम बोल दिए तो भाई हम क्वेश्चन करते हैं सीखने के लिए, सीधा बात है। हमको किसी को हर्ट करने का, छोटा करने का, नीचा दिखाने का कोई ये इच्छा नहीं है। हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना, देखिए क्वेश्चन करना बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन करने से होता है ना, नहीं तो क्या लगेगा? फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग में सब काट साट करके निकाल दिए ना। क्वेश्चन करने में क्या होता है कि कुछ गलतियां तो होता है, हमसे भी होता है गलती, क्यों नहीं होगा? प्रिंटिंग मिस्टेक कभी भी होता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है, क्यों नहीं होगा? अरे आदमी से ही गलती होता है। जो काम करते हैं वो तो एक वाइस चांसलर हमारे काम करते हैं, उसका गलती होता है। तो जो भी है, ये तो सच बात है, काम करने से कुछ ना कुछ जो चाहते हैं उसी का धक्का लगता है, गिरता है। तो ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। तुम लोग को मेरा प्यार, आशीर्वाद, स्नेह जो भी है, अगर मेरा आशीर्वाद में जोड़ है तो तुम लोग का भविष्य उज्जवल होगा ही। धन्यवाद दादा। हमारे दादा इसी तरह से स्वस्थ रहें, प्रफुल्लित रहें और सबके हृदय में विद्यमान रहें। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था कि बहुत देर तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो। अजी बोल तो लिया करो, चाहे मुझसे प्यार न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक एक शब्द दिल को छूने वाला था सर। अब मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता हूं। अब मैं अपने क्लास से फर्स्ट सेमेस्टर से स्वयं सोहन भैया को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे सामने
थैंक यू स्पीच रखना चाहते हैं। सो प्लीज कीप योर हैंड्स टुगेदर एंड विद अ बिग क्लैप वेलकम स्वयं